वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था। ओके, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ओके, तो इसका हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे एंड फिर उसका हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका सेटअप। ठीक है, सो जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे वो सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So it consists of a emitter. Okay, so that is a photosensitive emitter plate is there. Okay, one collector plate is there on opposite side. So emitter will emit the electrons has a negative energy, so it will be denoted by E minus. Okay, and there is a window that is called as a quartz window through which a light is incident on the emitter. So it is as is the source of light. Okay, it can be ultraviolet light also, and commutator is used over here, and a variable potential source is applied at the input. So that is a variable voltage will be applied to the commutator. So these are the main components of this experimental setup. We'll see one by one and its working. So we start with the first introduction. So in that, a typical laboratory experimental setup of for the photoelectric effect is shown in below figure, which consists of a evacuated glass tube. तो जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, इमीटर एंड कलेक्टर, जिसमें एक ट्यूब के अंदर ये सेटअप बनाया गया है एंड इट हैज़ अ वन window through which the light source will be incident on the this photosensitive emitter plate. Okay, so that is the evacuated tube is there. ठीक है, तो मैंने जो ये येलो मार्क से यहाँ पे दिखा है that is a evacuated tube. Okay, then with a quartz window containing a photosensitive metal plate. So it has a window, this evacuated tube has a window through which the light is incident on the emitter. So the emitter is noted as a by the E letter, and another metal plate is called as a collector. It is denoted by the capital C letter. The emitter and collector are connected to a voltage source whose voltage can be changed to an ammeter to measure the current in the circuit. Okay, सो यहाँ पे जो इमीटर एंड कलेक्टर है दे आर कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स. ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे देखा है. ठीक है, तो ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है. सो दैट इज़ कनेक्टेड टू बोथ कलेक्टर एंड द इमीटर आल्सो थ्रू अ कम्यूटेटर, एंड एन एमीटर इज यूज. दिस इज द एमीटर, दैट इज माइक्रो एमीटर. माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶. The value of that current is very small, so we take the ammeter, microammeter, to measure the value of current, and voltmeter is connected, okay, to measure the voltage or the input voltage. Okay, so the voltmeter is always connected in parallel and ammeter is always connected in series. Okay, तो जहाँ पे भी करंट मेज़र करना है तो एमीटर हमेशा आपका सीरीज़ में कनेक्ट होगा, तो ये आपका करंट मेजरमेंट होगा. एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वोल्ट मीटर ये दो पॉइंट्स में कनेक्ट किया है. सो इट गिव्स द वोल्टेज और ईएमएफ वैल्यू. ओके, नेक्स्ट, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी एज अ मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर. तो जैसे अभी हमने देखा कि वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट किया है and is maintained between the emitter, the cathode and the collector as a anode. ठीक है,
तो ये जो है वोल्टेज मेंटेन कर रहा है बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, बिकॉज वोल्टेज इज गिवन टू द बोथ इमीटर एज वेल एज कलेक्टर. सो इमीटर इज नथिंग बट द cathode. Okay, it is also called as a cathode and it is denoted by K, and collector is known as a anode and it is generally denoted as a capital A. ठीक है, तो ये हम चैप्टर नंबर 16 में डिटेल में पढ़ेंगे कैथोड एंड एनोड क्या होता है. ठीक है, बट अभी तक सिर्फ आप इतना समझिए कि इमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैथोड एंड कलेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एनोड. सो नॉर्मली सी बीइंग एट द पॉजिटिव पोटेंशियल, तो कलेक्टर जो है मीन्स एनोड इज एट द पॉजिटिव. सो दिस एनोड इज एट द पॉजिटिव पोटेंशियल from the voltage source with respect to emitter. Means naturally this emitter is nothing but the cathode. Okay, is at the negative potential. This potential difference can be varied and C can even be negative potential with respect to E. तो ये जो potential difference V है जो हमने एनर्जी सोर्स कनेक्ट किया है, ठीक है, सो due to that the C can be also a negative, means जो कलेक्टर है, ठीक है, so that can be a more negative potential with respect to the emitter. When the anode potential V is positive it accelerates the electron. means जब एनोड पॉजिटिव होगा, ठीक है, एनोड इज पॉजिटिव means this collector is positive, so at that time it accelerates the electrons, hence called as the accelerating potential. ठीक है, तो जब भी एनोड पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है, मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है, देन एट दैट टाइम accelerating, it accelerates the electrons. Okay, so that's why it is called as accelerating potential. While when the anode voltage is negative it retards the flow of electron. तो इसके अपोजिट है कि जब भी एनोड वोल्टेज नेगेटिव होगा with respect to cathode, so at that time it retards the electrons or the flow of electrons because of the opposite charge. Okay, तो जब भी एनोड पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, सो इट विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन एनोड इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड एट दैट टाइम इट विल रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज अ रिटार्डिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो जिस तरह से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है व्हेन एनोड इज पॉजिटिव, उसी तरह से व्हेन एनोड इज नेगेटिव, सो इट विल कॉल्ड एज अ रिटार्डिंग पोटेंशियल. Then next point is the source S. ठीक है, और source S is a monochromatic light that lights corresponding to only one specific frequency. तो ये जो S है ये एक light source है that is a monochromatic, means what it correspond to one specific frequency, means एक particular frequency या wavelength का light ही ये क्या करेगा, पास करेगा. So of sufficient high frequency that is short wavelength लेस देन 10⁻⁻7 मीटर इज यूज. ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी अ वेरी स्मॉल, और वी कैन से दैट इट हैज़ द शॉर्ट वेवलेंथ. ठीक है, सो दैट लाइट विल बी इंसिडेंट ऑन द इमीटर बिकॉज इमीटर इज अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल. ठीक है, यहाँ तक हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप का. देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस experiment. Okay, so when light is made to fall on the surface of metal plate E, तो ये जो एनर्जी सोर्स है मोनोक्रोमेटिक एनर्जी सोर्स ऑफ एस ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, सो जो लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगा दैट विल बी इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट E. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है ये वेव, ठीक है, जो रेड लाइन से मार्क किया हुआ है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड due to the incident of light on the emitter. Okay, तो जैसे ही लाइट फॉल होगा from the energy source through the quartz window on the emitter surface,
So at that time electrons are injected from the emitter, that is a metal, through its surface. ठीक है, तो इमीटर क्या एक मेटल है. ठीक है, तो एक मेटल से बना हुआ इमीटर है. ठीक है, तो जैसे लाइट इंसिडेंट होगा इमीटर पे, इट इंजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट्स सरफेस. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि इमीटर जो है वो फोटो सेंसिटिव है. ठीक है, मीन्स इट इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स द लाइट. जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, सेम वे से यहाँ पे इमीटर जो है वो फोटो सेंसिटिव है. तो वो क्या करेगा, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ इमीटर, इट विल इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे एरो दिखा है, दिस डॉट आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ इमीटर. उसका नाम ही इमीटर है, सो इट विल इमिट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, these electrons called as the photoelectrons are collected at the collector C. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो होंगे टूवर्ड द C, एंड C मीन्स कलेक्टर प्लेट. इट विल कलेक्ट ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका नाम ही कलेक्टर, मीन्स इट विल कलेक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड फ्रॉम द emitter. सो दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके सिंपल इलेक्ट्रॉन्स है दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. They are given this name to indicate you that they are emitted due to the incident of light. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट सोर्स है S, it will emit the photosensitive on the emitter plate. So emitter plate will inject the electron. These are the ordinary electrons which are collected at the collector plate. So we know that the free electrons are available in the metal plate. ठीक है, so they are emitted if sufficient energy. We will know more about the energy in the next chapter. ठीक है, to overcome the barrier that keeps them inside the metal. तो जितना लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो और जितना लाइट इंसिडेंट होगा इमीटर प्लेट पे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होंगे, इंजेक्ट्स होंगे, एंड दैट कैन ओवरकम द बैरियर. ठीक है, तो यहाँ पे एक बैरियर होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में. ठीक है, तो ये हम जब चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड, तो ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजन है, पी एन एन, मीन्स पी मीन्स पॉजिटिव, एन मीन्स निगेटिव. सो देयर इज़ अ बैरियर. ठीक है, मीन्स सिंपली अ रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू रीजन्स पी एंड एन. ओके, तो जितना लाइट इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा, ये बैरियर फ्री होगा. जितना लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इट विल इंजेक्ट फ्रॉम द दिस इमीटर प्लेट. ओके, एंड दैट बैरियर कैन बी ओवरकम एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिकम्बाइंड विद दिस एन टाइप ऑफ मटेरियल. ओके, सो दैट इज़ द सिनेरियो. ठीक है, तो उसको बैरियर पोटेंशियल भी कहा जाता है. So in the late of 19th century, these facts were known, and the scientists working on the photoelectric effect performed various experiments and noted down their observation. तो 19th centuries में, ठीक है, these experiments are run and the scientists are working on the photoelectric effect by performing the different experiments and noted their observation. तो उन्होंने 19th centuries में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए to know the photoelectric effect. ठीक है, and note down their observations. Okay, and these observations are summarized below. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए गए थे, तो इसके जो ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, मीन्स उससे जो रीडिंग्स मिले, ठीक है, या इससे जो एनालिसिस हुआ है, ठीक है, तो उसके कुछ मेन जो पॉइंट्स है वो अभी हमने देखने हैं. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो अभी इसके जो मेन एनालिसिस पॉइंट्स है उसका हम स्टडी करेंगे. सो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में टोटल 9 ऑब्जर्वेशन हमें स्टडी करना है. सो वी स्टार्ट बाय वन. ओके, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट. व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट. ठीक है, तो ये जो सोर्स है, यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूवी लाइट. ठीक है, so these are incident on the emitter plate. So the current I was recorded even if the intensity of radiation was very low. ठीक है, अगर लाइट का इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है,
तो भी इसमें से जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, that is a current will be in the ampere, so that can be recorded because we take the smallest part means microampere, so smallest value of current will also be recorded because the intensity of this current, ठीक है, will be depend on the intensity of this light, ठीक है। तो जैसे लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा the value of current will also goes on increasing. So photo current I was observed only if the frequency of incident radiation was more. तो जो फोटो करंट है, ठीक है, तो जो फोटो करंट इज I, so its frequency will be more when the intensity of this light will be a more, ठीक है, than the threshold frequency V0. So V0 is nothing but the threshold frequency. So photocurrent I was observed only if the frequency of incident line was more than the threshold frequency V0, ठीक है। V0 was the same for the given metal, तो ये जो V0 है threshold frequency is same for the metal and was the different for different metal used as a emitter. तो emitter एक metal plate है, ठीक है, metal से बना हुआ है, so this V0 is depend on the metal, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है इमीटर प्लेट में, तो उस हिसाब से थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 विल बी चेंज, दैट्स वाई डिफरेंट मेटल यूज एज अ इमीटर, दैट डिपेंड्स ऑन द this threshold frequency will be vary. So for a given frequency V is greater than V0 of the incident radiation, no matter how feeble was the light, meaning the small intensity of radiation be the electrons will always emitted, ठीक है। तो यहाँ पे अगर intensity of source means this light is weak, in that condition also the electrons were emitted from the this emitter plate. So that is the first observation from this experiment. Then we'll see the second observation. So there was no time lag between the incident of light and emission of electrons, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, ठीक है, टाइम मिसमैच नहीं है। जैसे ही लाइट सोर्स से अल्ट्रावायलेट लाइट विल बी इंसिडेंट through this quartz window on the emitter plate, instantly electrons are emitted from the emitter plate and it is collected at the collector. So there is no mismatch in time or time lag, ठीक है, between the incident of light and emission of electrons. तो emission of electrons and जो भी लाइट पहले उस पर इंसिडेंट हो रहा है एंड देन इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है, दोनों के टाइमिंग में कोई डिफरेंस नहीं, मीन्स फास्टली, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होंगे। सो द फोटो करंट स्टार्टेड इंस्टेंटेनियसली, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा थ्रू द क्वार्ट्ज विंडो द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एंड दिस फोटो करंट दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो करंट एंड दैट फोटो करंट विल बी मेजर्ड इन एम्पियर, ओके। सो द फोटो करंट स्टार्ट इंस्टेंटेनियसली ऑन शाइनिंग द रेडिएशन इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज लो। तो जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो एट दैट टाइम ऑल्सो द फोटो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ओके। सो एज सुन एज द इंसिडेंट रेडिएशन वॉज स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो करंट इज स्टॉप, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा रिलेशन है, किसमें, द इंसिडेंट्स ऑफ लाइट from the source and emission of electron. So they are directly proportional, means if the intensity of light will be low the current is also low, but if intensity of light will be increased the current flow will be also increase, okay. So that is the second observation from the experiment. Third observation from the experiment is that keeping the frequency V is the frequency of the incident radiation and the accelerating potential V, capital V, is fixed, okay. So at that time if the intensity was increased the photocurrent increase linearly with the intensity, ठीक है।
सो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी वी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, तो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है थ्रू द क्वार्ट्ज विंडो, अगर उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी इज आल्सो फिक्स मीन्स कांस्टेंट, इफ द इंटेंसिटी वाज इंक्रीज द फोटो करंट आल्सो इंक्रीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी, ठीक है, मीन्स उसमें डायरेक्टली रिलेशनशिप है, ठीक है, जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंड फोटो करंट का, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ग्राफ में दिखा है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो on y-axis it is a photoelectric current, it is denoted by I, and on x-axis light intensity or intensity of light is there, so both are linearly proportional to each other, that's why it is indicated as a straight line. Means if intensity of light is get increase, then photocurrent is also increase. If the photocurrent is decrease, the intensity of light is also decrease, so both are linearly proportional to each other. So that is the third observation from the this experiment. Okay, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बाकी के ऑब्जर्वेशंस है फॉर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दैट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।